Calcutta. Nice to meet you. Nice to meet you. आपसे एक बात पूछना था, like writing a book and making a movie are two expressions, creative expressions. How different or how similar what the two had been, and where do we see Tushar Kapoor as an author down the line? Yeah, so like in making a movie, as you said, they both are creative tasks. और तो जब मैं किताब भी लिख रहा था तो उन लॉकडाउन के महीनों में it became like a very good sense of accomplishment for me. And I should not do it in the day. I used to keep myself free in the night. And I planned it in such a way कि ऐसा लगे नहीं कि मैं भाग रहा हूँ, और किताब लिखने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ. मैंने ऐसे प्लान किया कि मैं सारा दिन का काम खत्म करूँगा. I mean, it's coincidental and it's strange, ironic कि लॉकडाउन के महीनों में as a parent and work from home की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ा, because you're donning so many hats when you become a parent. So I didn't get time in the day. तो मैं रात को सब कुछ खत्म करने के बाद I used to give myself 1 to 2 hours to write some notes, and then I used to finish the chapter, then I used to type it. So I set a pattern. तो वो जो संतुष्टि मिलती थी मुझे रात को 11:30-12 बजे जब मैं ख़त्म करता था, I used to feel very happy, feel very, very accomplished. This is a strange, I think it was a blessing for me in those months of the lockdown. I used to feel like I'm really accomplishing something. And then I used to feel so happy when I used to send Sohail the entire chapter. Actually send him the entire chapter. पता नहीं पढ़ता भी था कि नहीं, वो सीधा पेंगुइन को भेज देता था. And he also had become a father then. Yeah. And that used to be like a high for me once in 15 days. And then my pace increased. Then I started writing twice a day. Then I started writing every day. एंड जो एक महीना लगता था एक चैप्टर लिखने को, फिर मैंने 15 दिन में चैप्टर लिखना शुरू कर दिया. कभी कभी मैं दिन फ्री होता था तो मैं शुरू करते करते मैं इतना लिखता था 4-5-6 घंटे. तो इट वाज टू बी लाइक ग्रेट फन. सो आई डोंट नो व्हेन आई राइट द नेक्स्ट बुक. आई हैव टू बी इंस्पायर्ड टू राइट द नेक्स्ट बुक. और फिलहाल तो अभी एंजॉय कर रहा हूँ. बैचलर डैड को ही मतलब प्रमोट करने में मतलब बिजी हूँ. और मेरी फिल्म आ रही है दिसंबर में, मार्च, तो उसकी रिलीज इट्स बिन रेडी सिंस अ ईयर. सो आई वाज लुकिंग फॉर द राइट टाइम फॉर थिएटर्स टू ओपन एंड देन टू फाइंड द राइट डेट एटसेट्रा. तो वो एक थ्रिलर है, तो वो भी अभी मुझे काफ़ी मशरूफ रख रही है अभी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. Maybe बैचलर डैड का सीक्वल. I've already given him 2 ideas. Let's see when he accepts those. चलो, yes, yeah. पूछिए, क्या पूछे? तो लंबी उम्र दे उसको. दूसरी चीज, आपके कुछ लक्षण उस बच्चे में है या नहीं? जी है बहुत. He is very good in math. ये पूछा. He is very good in math and I think that has come from me because वो numbers का बहुत शौकीन है. numbers. When you ask this question कि आपने जितेंद्र सर से क्या सीखा है, तो मैंने सोचा कि यार जितेंद्र सर व्हाइट जूते पहनते थे, तुषार ने पहने के नहीं. मैंने देखा उन्होंने व्हाइट जूते पहने. स्वेटर भी थोड़ा व्हाइट ही है लेकिन पैंट व्हाइट नहीं है. अब हमारे ऑडियंस ने भी हमें तुषार जी को बहुत ज़्यादा प्यार किया है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. My pleasure being here. I love Ahmedabad, I love Gujarat. Thank you so much. I have a very strong emotional bond for Gujarat, especially because Golmaal would not be Golmaal without Gujarat. The kind of love that people, the audience, love for comedies that people have here, especially the kind of comedy that's there in Golmaal. I think indebted for a lifetime. Thank you so much once again for being here. Tushar ji, we have some interaction with media outside. आप लोग कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन इसके बाद शुरू हो रहा है. शुद्ध मिलता है. मैं बता ही जाऊँ तुम्हारा भाई, तो मैं आ जाऊँ फैमिली विद फैमिली करें. Thank you. चल. तुषार सर, आज आपका ये जो बुक लॉन्च हो रहा है AIMF में, सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से? ये मेरा आज अहमदाबाद में पहली बार बुक लॉन्च हुआ है फॉर दी अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल. और कृष्णा माशंकरी एंड इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. सर एक मिनट. तो ये मेरी बुक है, बैचलर डैड, मेरी पहली बुक एज एन ऑथर. इट्स अबाउट माय जर्नी इनटू पेरेंटिंग एंड बियॉन्ड. तो आई होप यहाँ के लोग मेरी बुक को खरीदेंगे, एंजॉय करेंगे. इसमें मेरी लाइफ के एक बहुत अहम हिस्से के बारे में लिखा गया है.
as I said, about my journey as a parent, और थोड़ी light-hearted अंदाज में लिखी है मैंने. But I hope you find it emotional, inspirational, and I hope it makes you happy. सर जैसे अभी आपने कहा कि ड्यूरिंग द सेशन में जैसे बात किया अबाउट द न्यू जनरेशन विद कनेक्टेड टू ऑफ इट, सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में अबाउट द न्यू जनरेशन या मेरा अपना पेरेंटिंग स्टाइल है. मेरे डैड का अलग था थोड़ा, एंड सबका अपना अलग अलग होता है. सो आई होप यू एग्री विद माय पेरेंटिंग स्टाइल, बट मैंने कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की इस बुक के ज़रिए कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. मैंने बस ये अपनी जर्नी के बारे में लोगों के बहुत सारे सवाल जो है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि इतनी अनकन्वेंशनल जर्नी कैसे हुई, ये सब चीज़ें, और कैसे शुरुआत हुआ इस जर्नी का, कैसे चल रहा है और कैसे कर रहे हैं आप, कैसे मैनेज कर रहे हैं. तो उन सारे सवालों के जवाब मैंने इस किताब के ज़रिए दर्शाने की कोशिश की है. सर आपको ये बुक लिखने में टोटल कितना टाइम लगा था और कैसे आप मतलब आपकी रूटीन लाइफस्टाइल के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं? वेल, लॉकडाउन के महीनों में मैंने लिखी इस बुक को. 11 महीने लगे मुझे, और मैंने अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश की इस बुक को लिखने के लिए. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिन का पूरा काम खत्म करके रात को बैठ के लिखूँगा. तो शुरुआत में मैंने अपने आप को थोड़ा ईजी करने के लिए, अपने आप के लिए मैंने एक घंटा लिखना शुरू किया, फिर उसे 2 घंटा बना दिया. फिर मैं जैसे ही नेचुरली स्पॉन्टेनियसली यूज्ड टू होने लगा राइटिंग को लेकर, तो और लिखने लगा, और घंटे बैठ कर लिखता था, इन्जॉय करने लगा, फिर रोज़ लिखने लग गया. और मेहनत बहुत लगी, क्योंकि राइटिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम निकालता है आपका, क्योंकि आपको पहले नोट्स लिखने पड़ते हैं, फिर आपको उसको डिजिटल वर्जन में टाइप करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है और आपके पब्लिशर को. फिर बुक की एडिटिंग शुरू होती है. तो एडिटिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. पहले तो मतलब स्ट्रक्चरल एडिट होता है, फिर कॉपी एडिट होता है, फिर बुक की पिक्चर्स मैंने सिलेक्ट की अपने लाइब्रेरी से. तो उसको मतलब सिलेक्ट करने में कहाँ डालूँगा मैं उसको, हर पैराग्राफ किस पैराग्राफ के सामने, तो वो एक अलग ही मतलब स्टेप है जो उसके लिए मुझे 2-3 हफ्ते लगे. फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फाइनल प्रूफ रीडिंग होती है, फिर प्रमोशन होता है बुक का जो अभी भी चल रहा है. तो इट्स एज मच एज अ मूवी, इट्स लाइक अ मूवी प्रोडक्शन. सर यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे कंट्री के यूथ को? आई थिंक हमारी यूथ मैसेजेस मतलब लेकर थक गई है. उनको पता है उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है. आई जस्ट होप दैट एवरीबडी गेट्स एजुकेटेड, एवरीबडी इज इंक्लूसिव. हमारी यूथ में बहुत अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, कुछ मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड्स के भी होते हैं. तो आई थिंक सबको साथ में लेकर सबकी शिक्षा होनी चाहिए, सबको इनकरेज करना चाहिए, और सबका बेस्ट निकल कर आना चाहिए. तो दैट इज़ नॉट अ मैसेज, दैट इज़ माई विश. ये आपका फर्स्ट बुक है सर? यस, माई फर्स्ट. आई हैव रिटन माई सेल्फ. मैंने मुझसे कहा गया कि ये मत कहो कि आपने खुद लिखा है, बट इसमें कोई ऑथर नहीं है. ये पूरी तरह मेरी ही लिखी गई किताब है. बस पेंगुइन के साथ इसकी एडिटिंग हुई है, एंड विदाउट देम दिस वुड नॉट बी पॉसिबल. सो 3 cheers for पेंगुइन. थैंक यू. इसका मेरी स्टोरी है. अच्छा मान लो ये पंचायत चल रही है, तो सारी चीज पंचायत वाली है जो चलेगी. ये IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर. सर आइए आप. lot of other things. So now we are going out. Please out. So we are going out now. Shall we move on? Yes, yes, yes. विकास भाई, विकास जो लोग रह गए वो आ सकते हैं एक बार. Those new people who are not click, please आगे जाओ. सौरभ तुम जाओ. सौरभ तुम के साथ जाओ.
Can you take a photo of my Ahmedabad press वाले सब लोग एक पोर्ट्रेट Side, please. Please, side. मैंने भी कुछ ज़्यादा रंग आता है, बहुत इफेक्टिव और ऐसा लगता है। आपने टीम तो पूरी बनाई, इनको भी पटा दिया। हम बोल दो अरे नहीं ये आपका बड़े स्टार है, आपने तो बोला है ये वीकेंड पे मोहम्मद की बड़ी ऐसा कुछ हर एक को एक एक स्टोरी लिख पाते हैं, सबने अलग अलग क्या बेशरम है, हट भी नहीं रहे। ओके डन ओके भाई जब ये किसके लिए है? थैंक यू डन Thank you. It was really nice. यस डन डन थैंक यू या थैंक यू एक मिनट वेट हम में से पता नहीं कितने सीरियस लोग यहाँ पर हैं जितने, लेकिन इतने सीरियस ऑडियंस मैंने बहुत साल बाद देख पा रहा हूँ। क्या अगर आप सब लोगों के उत्तर में इसके लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन कुमार शंकर जी के लिए चाहता था, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि इतना अच्छा लिखा जाएगा। और जब भी हम कभी अपने आप को याद करेंगे तो हम इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि इस सभागार में कभी आदरणीय योगेंद्र यादव जी को, क्योंकि हाँ मैं उनका एक सवाल है कि माता भारती के पद समर्पित है, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान। क्या बात है, वंदे वंदे। उमा शंकर जी और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और आप सबको नमन। थैंक सो मच सर आने के लिए। 1-2 मिनट और लूंगा। इससे पहले कि हम ये सेशन समाप्त करें, एक और मुझे लगा मैं मिलने का मौका नहीं छोड़ूंगा यार। थैंक यू। कंचन आएंगे जी प्लीज हाँ जी बस सर इसीलिए तो मेरे को अंतर है। प्लीज
मैं अशोक यादव हूँ और अहमदाबाद में यादव सेवा समाज हम लोग रहते हैं। सर कैमरा लो, कैमरा लो। आने वालों को यहाँ पे जी जी सर आपको अरे यार अच्छा कोई बात नहीं। सुबह में मेरा और एक सर का मेरे वाले भाई आप जब रोल करें तब बताइएगा। रोल। जय हिंद, दिस इज डॉक्टर कावेरी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिटी मच एवरीथिंग और मैं मौजूद हूँ आज अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2022 एट अहमदाबाद और मेरे साथ मौजूद है इसी वजह से हम लोग सेफ हैं और ये 5 मिनट का जो वार्तालाप है इंटरव्यू है वो हो रहा है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव एंड वी आर हियर टू टॉक अबाउट हिज लेटेस्ट बुक द हीरो ऑफ टाइगर हिल एंड सर एक चीज़ और कॉमन है आपकी और मेरी सृष्टि पब्लिशर्स। Yes. मैंने भी मेरा डेब्यू ई बुक का उन्हीं के साथ किया है सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर बुक एंड आपकी जितनी भी हीरोइक टेल्स हैं उसके बारे में हम जल्द से बात करेंगे प्लस ऑल्सो बेस्ट विशेस टू सृष्टि पब्लिशर्स एंड ग्लैड दैट वी मेट हियर कि मेरी आपसे रूबरू होकर 5 मिनट बात हो रही है। सर सबसे पहले तो यस आपको कूडोस, आप लोग हैं इसकी वजह से हम हैं, शांति से बैठ के ये फेस्टिवल हो रहा है, हम लोग कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे तैनात हैं। लेकिन ये बात भी है कि जब भी कोई बॉर्डर में जो बसे विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे जब आतंकी अटैक्स होते हैं तो एक सिविलियन की मौत की खबर से जितना दुख होता है उसी के साथ साथ एक फौजी की मौत से भी होता है। तो उस टाइम पे ये जो पूरी हमारी भारतीय सेना है उनके मन में क्या मंतव्य चल रहा होता है, क्या फीलिंग्स आती हैं, बिकॉज एक सिविलियन की अगर डेथ हुई है तो साथ में एक फौजी भी शहीद हुआ है, तो आपको उस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, जो सिविलियंस है वो भी इस भारत का नागरिक है और इस माँ भारती का बेटा ही है, तो उसका भी दुख उतना ही होता है जितना एक सैनिक के, क्योंकि वो देश की उन्हीं लोगों की रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो अगर व्यक्ति विवाद से या किसी दूसरे कारणों से वो शहीद हो जाता है, मैं तो उसको मरा हुआ नहीं शहीद ही कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो है अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए वहाँ पर रह रहा है, क्योंकि सीमाओं पर रहना इतना आसान नहीं है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके लेकिन उस धरती माँ के लिए अपने आप वहाँ पर रहता है और दुश्मनों से लड़ता भी है, फिर वहाँ पर वो अगर शहीद होता है तो देश उतना ही गम होता है। बिल्कुल सहमत हुआ आपकी बात से, क्योंकि एक बॉर्डर पे तैनात हो या हिमालय की बर्फीली चोटियों पे एंड वहाँ पे -डिग्री पे जहाँ लोग चल भी नहीं पाते हैं बर्फीले पातों पे, वहाँ पे सैनिक दिन भर 24/7 तैनात रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी आम आदमी के बारे में है। यू ऑल आर ऑलमोस्ट अबव एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड थैंक यू। जो भारतीय सेना है, जो आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस दैट वी हैव, जब हीरोइक टेल्स पे पिक्चरें बनती हैं और वो बड़े सिनेमा बड़े पर्दों पे दर्शाया जाता है, तो उस टाइम पे हाँ एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है और जो रियलिटी है तो कुछ हद तक वो भी लोगों के सामने लाई जानी चाहिए। हाँ जी, तो जैसे उरी जैसी मूवी बनती है या राजी जैसी पिक्चरें बनते हैं और आप जब उसको बड़े पर्दे पर देखते हैं तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? सैनिकों को अच्छा लगता है जी कि उन्होंने जो काम किया है जी, उस काम को देश तो जानता है लेकिन पूरी दुनिया भी जानती है। तो ये एक मानसिक
जो प्रभाव डालने वाली भी चीज़ें होती हैं कि आज हिंदुस्तान का सैनिक, उसका मनोबल इतना ऊंचा है, उसकी कार्यशैली इतनी उच्च कोटि की है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने लक्ष्य को भेद सकता है। तो जब वो सिनेमा पे आती है तो वो सैनिकों को अच्छा लगता है कि हाँ, उनकी उस कार्यशैली का पूरी दुनिया के ऊपर सराहना। हाँ, बट वही है कि इसमें 2-3 एस्पेक्ट है, लेकिन हमको जो कहानी है जैसे राजी या फिर उरी की जैसी कहानी या बॉर्डर पिक्चर फिल्म भी हुई थी, एलओसी कारगिल आई थी जी। वो देखो, ये वो तो होता ही है कि उनका जो कॉमर्शियली तो होना ही है ना, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो फैक्ट होते हैं वो दुनिया के सामने, देशवासियों के सामने आते हैं, तो उन लोगों का, क्योंकि हर एक लोग एक प्रवृत्ति के नहीं होते, उनकी मानसिकताएं अलग अलग होती है ना। कुछ लोग बोलते नहीं है कि अरे फौज में है तो मरने के लिए है, लेकिन उनको ये बताने के लिए है कि फौज में जो सैनिक है वो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए। हाँ, और जब वो मारता है तभी हम सुरक्षित होते हैं, अगर वो मर गया तो हम सुरक्षित नहीं है। तो ये मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। तो वो जो चीज पर्दे पे दिखाई जाती है तो उनकी भी शायद कहीं ना कहीं हो सकता है मानसिकता चेंज होती होगी कि हाँ, सैनिक मरने के लिए नहीं, सैनिक मारने के लिए। और देश के लिए शहीद होना और देश के लिए दुश्मनों को मारना, ये जिगर सबके पास नहीं होता, नहीं तो शायद आज हम सब भी फौजी होते। ये भगवान के कुछ चुनिंदा इंसान होते हैं जिनको फौजी बना दिया जाता है, जो हमारी सुरक्षा के लिए जिनको खड़ा कर दिया जाता है। सो एक आपसे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, एक आखिरी सवाल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, हालांकि ये मैंने इसका ब्रीफ पढ़ा है, आपकी किताब किस बारे में है, बट मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दर्शकों को जल्द से बताएं कि अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उसमें उनको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और ये किस तरह से उन लोगों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसको मैं लिखने की मुझे जो है मेरे साथियों के द्वारा प्रेरित मुझे किया गया कि आप जो है जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं शब्दों में और एक बुक के अंदर प्रकाशित होनी चाहिए। तो मैंने इसमें वो चीज़ें सब लिखने की कोशिश करी कि इस धरती का, इस माँ भारती का क्या महत्व है, और हिंदुस्तानी जो संस्कार संस्कृति जो होते हैं उनसे किस तरह से एक बच्चे के अंदर ताकत बढ़ती है, जो घर का माहौल होता है वो बच्चे के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट डालता है। मैंने आज और उस समय के जब बचपन को जो है मैं देखता हूँ तो तुलना करता हूँ कि हम किस तरह, किस माहौल में किस आ गए। पहले एक संयुक्त परिवार था, आज एक एकीकृत परिवार है। समस्याएं उस समय ज़्यादा थी, आज कम है, लेकिन आज कम वाली समस्याएं भी बहुत ज़्यादा दिखती हैं। उसका कारण है कि हम संकुचित होते हुए चले गए। हम इकट्ठे में, जो पहले हमने कहानी सुनते थे कि एक उंगली होती तो सब तोड़ देते हैं, लेकिन अगर इस उंगली बंद हो जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो वो क्योंकि फौज के अंदर जब हम देखा, मैंने उस चीज को महसूस किया कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति थी संगठित रखना, तो वो संगठन से ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। और वो संगठन मैंने सेना के अंदर देखा, जो आज समाज के अंदर कहीं ना कहीं अंदर है। फिर मैंने इसमें भी बताने की कोशिश करी है कि जीवन के अंदर बहुत सारी विपदाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, और समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आती हैं, इंसान के द्वारा खुद पैदा की जाती है। और जब वो इंसान अपनी समस्याओं में इतना ग्रस्त हो जाता है तो वो हताश और निराश हो जाता है, तो वो अपने आप में इतना नेगेटिविटी हो जाता है कि उसको लगता है कि यार जीवन बेकार है, अब जीवन का कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ ये दर्शाने के, बताने के, लिखने की कोशिश करी है कि जीवन कभी बेकार नहीं होता है। ये धरती पर जब इंसान के रूप में हम आए हैं तो बहुत पावन है, और ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर भी बनाया है, बहुत सशक्त भी बनाया कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने आप को परिस्थिति में संतुलित रख सकते हैं, उस परिस्थिति से बाहर भी निकल सकते हैं। यहाँ आप, मैंने ये लिखने की भी कोशिश की है, नौजवानों को बताने की चेष्टा भी करी है कि हिंदुस्तान
एक आध्यात्म का वो रहा है, विश्व गुरु रहा है, जिसने इस मानवता के बारे में लोगों को, दुनिया को बताया है कि किस तरह से जो है मानवता इस धरती पर उसका विचरण हो सकता है, मानवता का जो है किस तरह से हम भलाई कर सकते हैं। तो मानवता से अगर लोग प्रेम करेंगे, इस राष्ट्र से प्रेम करेंगे, वो अपने आप जो खुद से प्रेम करता होगा, वो धरती से भी प्रेम करता होगा, वो मानवता से भी प्रेम करता होगा। क्योंकि अध्यात्म में ये दिखाया है, और मैंने वो समझा था उस लड़ाई के दौरान कि अध्यात्म कितनी बड़ी शक्ति है जो हमें आत्मबल प्रदान करती है। अध्यात्म हमें बताता है कि ये हम पंच तत्व का शरीर है हमारा, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और सभी ज्ञानेंद्रियों का राजा मन होता है। लेकिन मन का भी एक कोई राजा होता है, वो हमारी सांस है। इस जीवन को जीने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो सांस होती है, प्राणवायु। और परमात्मा ने वो प्राणवायु हमें मुफ्त में दे रखी है। और फिर पेट भरने के लिए इतने फल फ्रूट, ये सब कुछ अनाज है धरती से, तो आपको सांस भी मिल गई, आपको भोजन भी मिल गया, तो आपको अभी उठना चाहिए। तो आप अपने सांसों को जिस दिन अपने साधना शुरू कर दिया, आप तब साध सकते हो जब आप खुद से मोहब्बत करते होगे, अपनी सांसों से मोहब्बत करते होगे। 16 प्रकार की वायु होती है जो हम सांस लेते हैं, उसमें से एक प्राण वायु होती है। आप लोगों को मालूम है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। लेकिन अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, उसको साधना शुरू करें, जितनी गहरी सांसें होंगी तो कम सांसें रहेंगी, जीवन लंबा भी होगा, और जितनी सांसें धीमी होती है उतना ही हमारा माइंड शांत होता है। ये आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि आप कभी दौड़ते हो, आपके घबराहट होती है तो सांसें बढ़ जाती हैं, माइंड उथल-पुथल होता है, उसमें सूझता नहीं कुछ भी। लेकिन जब हम बोलते हैं चल गहरी गहरी सांसें लो, तो जब हम बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, गहरी गहरी सांस, मन शांत होता है। इसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ये अध्यात्म में हमारा ब्रह्मांड है, एक तरफ ऊर्जा है, एक तरफ ज्ञान है। तो जितनी कम सांसें होंगी, गहरी सांसें होंगी, आपका ब्रह्मांड खुलेगा, आपकी ऊर्जा आपके पास आएगी, और वो ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आती है। क्योंकि मैंने देखा उन पलों को जिया है कि जब 17 गोलियां लग चुकी हैं, इतना लहू लुहान है, लेकिन अपने उस समय सांसों को साध के रखा, तो मन को असंतुलित नहीं होने दिया। क्योंकि जब माइंड असंतुलित होता है तभी जो है हम नेगेटिविटी आती है। तो पॉजिटिविटी रखिए, अपने सांसों को ऊपर जो है केंद्रित कीजिए, और आप जीवन के अंदर वो प्राप्त कर सकते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं। क्योंकि ये वो साधन है, वो ये साध्य है कि इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा होती है। आपने महाभारत के पात्र देखा होगा, पितामह भीष्म, दृढ़ प्रतिज्ञा थी। उसने उस दृढ़ प्रतिज्ञा से, क्योंकि अपने सांसों के ऊपर उनका नियंत्रण था, तो अपने प्राणों के ऊपर भी नियंत्रण था। अर्जुन के बाणों से उसका रोम रोम छलनी था, लेकिन मरा नहीं था, वो मरे अपनी उससे। सत्यवान सावित्री की हमने किताबों में कहानी पढ़ी, वो कैसी सतीव्रता व्यक्ति, औरत, नारी इस धरती की, इतनी दृढ़ प्रतिज्ञावान, उसने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। तो हम अपने जीवन को अपने हाथ में कर सकते हैं, हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को साधना सीखिए। जब आपने अपने आप को साधना सीख लिया तो आपका जीवन साज है। तो ये चीजें इसमें बताने की कोशिश करी मैंने कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। एंड आई थिंक ये जो सांसें हैं, हम एहसानमंद हैं हमारी भारतीय फौज के लिए, जब ये बॉर्डर पे तैनात होकर अपने परिवारजनों को भूल के हमारी सुरक्षा के लिए, देश के लिए तैनात रह सकते हैं। सो एज एन इंडियन सिटीजन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने स्तर पर देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने छोटे से छोटे कार्य द्वारा समाज की सेवा में अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके द्वारा समाज में एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करने की आप पूरी कोशिश करें।
सो प्रीटी मच एवरीथिंग के मंच पे आपको आज बात करने के लिए मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ श्री उमाशंकर यादव जी का और अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का, जिन्होंने मौका दिया हम दोनों को एक दूसरे से रूबरू होने का, और आपका मेरे 180 इंटरव्यू को पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This is Dr. Kaveri signing off from the platform of Pretty Much Everything for the one last time before you hear me again. Jai Hind. या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती जय मां सरस्वती। आज हमारा सौभाग्य है कि AILF के एक कार्यक्रम के चलते ये कार्यक्रम यहाँ पर हो पा रहा है। सबसे पहले तो ये इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता ले सकें। आप में से कई लोगों की इच्छा थी कि आप लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य है। और कुछ समय की पाबंदियाँ और बाकी तकनीकी कारणों से हम आपको वहाँ नहीं जोड़ सके, तो हम आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। आप सब यहाँ आए इसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। और जैसे कि इन्होंने मुझे कहा कि कार्यक्रम का दारोमदार, अब हमें हमेशा अपने से बड़ों को कुछ दारोमदार देना चाहिए, तो मैं दारोमदार न दे करके विनती करूँगी श्रीमती कुमुद वर्मा जी से कि वो अब इस कार्यक्रम को अध्यक्षा की तरह संचालित करें, निर्देशित करें, जो भी चाहे करें और मुझे जाने दें। मैं आप सबकी आज्ञा चाहती हूँ। मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, पर मैं आप सबसे उतना ही प्यार करती हूँ और मैं आप सबके इस वीडियो को आराम से सुकून से सुनने वाली हूँ। मुझे माफ़ भी कीजिए और उतना ही प्यार भी कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमें यहाँ पे बिठा दिया है उसने। हाँ, जाती है तो उनकी छोटी सी कविता का अंश, कविता बड़ी है, उसका एक छोटा सा अंश है। कूदों सरसों से क्षुद्र चीज उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और कंद मूल, उस छोटे वो निकली हैं प्रकृति हमारी, वो बीज से निकली हैं। वह है मुट्ठी में बंद किए भटके पादप का महाकाल, संसार एक, आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर खूबसूरत देवभूमि से जिनका गहरा नाता है और अब जो अहमदाबाद की निवासी हैं, उन मंडली कवि मित्र अल्पना पुनेठा जी का मंच पर सादर स्वागत करती हूँ। ये पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय लेखन कर रही हैं, लेखिका और कवित्री हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय लेखन कर रही हैं, लेखिका और कवित्री हैं। इन्हें गद्य और पद्य दोनों पे लिखना पसंद है। अब तक इनकी कुछ काव्य रचनाएं प्रकाशित। उमाशंकर जी और श्रद्धा रमानी जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच तक आने का प्रकृति जननी है, इस पे मैंने लिखा है। मैं कहना चाहती हूँ कि कुदरत के मेरे जज्बातों को आपके रूबरू करना चाहती हूँ। कुदरत के मेरे जज्बातों को आपके रूबरू करना चाहती हूँ। मेरे इन ख्वाबों की एक अलग तस्वीर खींचना चाहती हूँ। मेरे इन ख्वाबों की एक अलग तस्वीर खींचना चाहती हूँ। बंद दरवाजों में होती नहीं हमें कुदरत, होते नहीं हम कुदरत के करीब, इसीलिए आप सबको पहाड़ों की वादियों में ले जाना चाहती हूँ। मेरी आज की कविता का शीर्षक है बर्फ का एहसास। मखमली सर्द हवा ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और पूछा
कौन है? रेशमी हवा दूरिया कोहरे को लेके संग बोली, तुम्हारी पुरानी पसंद, मैं गुलाबी ठंड। और उसने बड़े प्यार से मेरे गाल को सहलाया और अपने होने का एहसास दिया। और अपने एहसास का गुलाबी रंग लगाया, फिर धीरे से मेरे कान में गुनगुनाया, अरे देखो प्रकृति ने कैसा रंग है जमाया। रात कोहरे ने ओस की बूंदों को दावत है दिलवाई, पर बादलों के पीछे छुपे चांद सितारों ने सख्त नाराजगी दिखलाई। सर्द पड़ी है आज, बर्फ पड़ी है आज, धूप में ली है यूं आज विदा शर्मा कर, जैसे दुल्हन छुप गई हो बादलों के आंचल में मुंह छुपाकर। खूब रंग फिजा ने आज है खुलाया, अरे देखो कुदरत ने कैसा नजारा है दिखाया। हल्की फुल्की रुई सी बर्फ, न कोई रंग और न कोई भार ही दिखलाया। गिरी जब गालों पर तो यूं लगा जैसे माँ ने है सहलाया। हाँ माँ ही तो है, प्रकृति जमीन में है थपथपाया। दूर तक नजर दौड़ाई तो सिर्फ एक सफेद चादर से पला सी खूबसूरती ही नजर आई। कैसा मंजर आज फिजा ने है ख्वाब सा दिखलाया। हर तरफ रोमांच ही रोमांच नजर आया। अरे देखो कुदरत ने क्या रंग है दिखलाया। परत दर परत बर्फ गिर चुकी, परत दर परत बर्फ गिर चुकी, अब खूबसूरती अपना परचम लहरा चुकी। प्रकृति ने उसे जमा दिया। छोड़ ही जाते हैं पंछी भी अक्सर, छोड़ ही जाते हैं पंछी अक्सर जमे हुए पहाड़ों को वीरान सा, पर जमने न देना तुम अपने जज्बातों को इस बर्फ सा। सीले से रिश्तों पर भी, सीले से रिश्ते पर भी अपने प्यार की गर्माहट बिखेरते रहना। इंसानी जज्बातों पर एहसासों का प्यार का मरहम लगाते रहना, यही नियम प्रकृति जननी ने हमें है सिखलाया। मखमली सर्द हवा ने यूं ही है गुनगुनाया, अरे देखो माँ प्रकृति ने कैसा रूप है दिखलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए हमारी अगली कवि मित्र हैं सुश्री आशा सिंह सिकरवार जी। इनके अब तक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और गजल, कविता, कहानी, लघु कथा जैसी विधाओं में लेखन और ढेरों समीक्षाएं प्रकाशित हो चुके हैं। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के पाठ्य ये हवाएं शोर चारों ओर है, बदल गई हैं ये हवाएं शोर चारों ओर है, जल उठा है आसमां, ये सुबह को क्या हुआ है, ये सुबह को क्या हुआ है। कविता का शीर्षक हमने बीज बोए, हमने दी उन्हें खाद और पानी, हमें फूटे कौपले बनकर, हमें झूल गए उनकी शाखाओं से, हमें बने रस गंध रंग उनके लिए, हमें लगे मीठे रसीले फल बनकर, सड़क के निर्जन में हम ही बने छायादार पेड़ बच्चों की खातिर। हजार हजार सालों तक उन पर झुके रहे जरा बनकर, पीपल, गुलमोहर, बरगद पके, अमराइयों पर आमों में जीवन का स्वाद रख कर कोमल कोयल की स्वर लहरियां बैठती हैं। ऊंची चोटी सी छाई जामुनी, गवादार अमरूद, सुर्ख अनार दानों में खिली जीव इंद्रियां, उन्हें मिले रस गंध रंगों की पहचान, रात रानी की खुशबू, क्वारियों में निकले मोगरा चमेली जूही के फूलों पर खिली नाजुक धागे को प्रेम के बंधन में पिरोती प्रतिमाओं से निकल जन्म जन्मांतर तक आत्म को साधती, संस्कृति के स्तंभ पर बची रही मनुष्य की गंध,
पृथ्वी के मुख पर। उन्हें सांस लेने में तकलीफ न हो, उन्हें मिल सके अपनापन, भीतर ही भीतर अमृत रिश्ता रहे, बूंद बूंद सोखती रहे पाताल में जड़ें और हम फैलती चली गई। धरती के अनंत गर्भ तक दुख से अछूता कभी रहा नहीं धरती का मन। आंखों ने हरियाली देखी, कभी सिगरेट नहीं फूकी, मदिराने नहीं गए। खाक होती जिंदगी पर चंद्र सरी का उजाला बज नहीं रहा। धुआं नहीं छोड़ने दिया, धुआं नहीं पहुंचने दिया आकाश गंगा तक, ताकि चंद्रमा की चमक बरकरार रहे। धन्यवाद। विनीता ए कुमार जी को। बिहार की भूमि से जिनका संबंध है, लेकिन कर्म भूमि अहमदाबाद है, ऐसी हमारी अगली द्विभाषीय कवि मित्र अब मंच पर अपना कविता पाठ करेंगे, जो हिंदी और भोजपुरी भाषा में पिछले 15 वर्षों से लिख रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी विनीता जी पूर्व अध्यापिका रह चुकी हैं, मधुबनी कला की चित्रकार हैं, लेखिका और रेडियो टीवी कलाकार भी हैं। आपका सादर स्वागत करती हूँ विनीता जी, आपकी प्रस्तुति का इंतजार है। आवाज, हाँ। प्रकृति के एक मुख्य अवयव नदी पर अपनी एक कविता आपके सामने रख रही हूँ। आवाज सही आ रही है? मैं बहती ही रही कल कल, नदी हूँ मुझको है बहना, उतरती हूँ हिमालय से निरंतर बन के एक झरना। मैं बहती ही रही कल कल, नदी हूँ मुझको है बहना, उतरती हूँ हिमालय से निरंतर बन के एक झरना। मुझे राहों के ऊंचे ऊंचे चट्टानों ने रोका था, फैला था जो मीलों तक सघन वन ने भी रोका था। मुझे राहों के ऊंचे ऊंचे चट्टानों ने रोका था, फैला था जो मीलों तक सघन वन ने भी रोका था। मैं रुक जाती तो रह जाती, कितनी जान प्यासी ही, समंदर दूर था लेकिन मंजिल तक पहुंचना था, कि उस चट्टान और वन को भी मैंने भेद ना जाना। मैं बहती ही रही कल कल, नदी हूँ मुझको है बहना, नदी हूँ मुझको है बहना। दर्पण हूँ मैं उस नीले गगन और चांद तारों का, समाया है मेरी लहरों में धुन सौ सौ सितारों का। दर्पण हूँ मैं उस नीले गगन और चांद तारों का, समाया है मेरी लहरों में धुन सौ सौ सितारों का। मेरे तीरों पे है सब एक, क्या काशी है क्या काबा, मुझसे सीख है इंसान संग मिल जुल के ही रहना। कदर मेरी न छोड़ो तुम, मैं हूँ इस धरती का गहना। कदर मेरी न छोड़ो तुम, मैं हूँ इस धरती का गहना। मैं बहती ही रही कल कल, नदी हूँ मुझको है बहना, नदी हूँ मुझको है बहना। मेरी जो मेरा पैराग्राफ है उसमें नदी वो मिल जाता है नदियों में, उसके बावजूद भी नदी कभी रुकती नहीं है, वो प्रवाहमान रहती है और हमें कैसे जीवन में गतिशील रहने की ओर अग्रसर करती है। वसुधा की ये हरियाली मुझसे ही थिरकती है, मेरा बादल मेरा प्रियतम उसे दिन रात तकती हूँ। वसुधा की ये हरियाली मुझसे ही थिरकती है, मेरा बादल मेरा प्रियतम उसे दिन रात तकती हूँ। समाया है मेरी लहरों
समाया है मेरे आंचल में सारा विश्व, तड़पती हूँ मेरी तड़पन मेरी उलझन किसी से भी नहीं कहती। समाया है मेरे आंचल में सारा विश्व, तड़पती हूँ मेरी तड़पन मेरी उलझन किसी से भी नहीं कहती। मैं कुदरत हूँ मुझे हर हाल में सबके लिए बहना, मैं बहती ही रही कल कल, नदी हूँ मुझको है बहना, नदी हूँ मुझको है बहना। उतरती हूँ हिमालय से निरंतर बन के एक झरना, निरंतर बन के एक झरना। बहुत बहुत एक संवेदनशील विषय पर आपने बहुत अच्छे से जोर दिया और सबका ध्यान उस तरफ दिलवाया है। बेटर है तो बहुत अच्छी कविता आपने बोली और आपके जो सुर थे उनमें भी हम लोग खो गए और आपने उसको हमारी आंखों में चित्रित कर दिया। आपकी फीलिंग को हमने महसूस किया है। और अब मैं हमारे बीच में है मीरा जगनानी जी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। मेरा प्रणाम। और कविता में प्रकृति हमारी जननी। प्रकृति में पतन का प्रवाह अति वेगवान है। प्रकृति में पतन का प्रवाह अति वेगवान है, अति प्रचंड है। अट्टहास लगाता दसों दिशाओं में चक्र की तरह घूमता बवंडर है। अट्टहास लगाता दसों दिशाओं में चक्र की तरह घूमता बवंडर है। कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन है, नदी किनारों को छोड़ रही है। समुद्र की लहरों पर नटराज के तांडव की लय ताल हल्ला बोल रही है। नटराज के तांडव की लय ताल हल्ला बोल रही है। चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर हाहाकार है। कोई डूब रहा है, कोई बह रहा है, कोई भूख प्यास से बिलख रहा है। नाले नदी बन रहे हैं, चारों ओर पानी का कहर है। बचा बचा का शोर है, बर्बादी का जोर है। आंखों में आंसुओं का जोर है, पेट में भूख का जोर है। ये कैसी आंधी है, ये कैसी आंधी है, ये कैसा चक्रवात है, ये कैसी बरसात है, ये कैसी बरसात है। कांच की है बूंदें, प्रहार कटार का है। कांच की है बूंदें, प्रहार कटार का है। बरस रहे तन पर ओले, बह रही है धार रक्त की बूंदों में धार पानी की। तन हुआ है लवण, रिस रहा आंखों से खारा पानी भी, रिस रहा आंखों से खारा पानी भी। पहाड़ टूट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। चट्टाने हर हराते हुए, कभी सरसराते हुए तुझ में ही लो लो रे माँ, तुझ में ही लो लो रे। पहाड़ टूट रहे हैं, चट्टान हर हराते हुए, कभी सरसराते हुए तुझ में ही लो लो रहे। बार बार तू कांप रही है, बार बार तू कांप रही है। किस बात का तुझे है डर माँ, किस बात का तुझे है डर। तेरे छटपटाने से, तेरे थरथराने से ताश के पत्तों सरीखे हम बिखर रहे हैं। घन मंजिला और जिंदगियां, घन मंजिला और जिंदगियां टूटते पहाड़ों के नीचे, दरकते चट्टानों के नीचे चीख रही है, चित्कार रही है। जीवित लाशों की भयभीत फटी आंखें मुर्दों को आस लगाए देख रही है। जीवित लाशों की भयभीत फटी आंखें मुर्दों को आस लगाए देख रही है। मैं समझ रही हूँ माँ, मैं समझ रही हूँ। सदियों से अंदर ही अंदर तू धधक रही है। क्रोध की अतिशय में लावा बनकर तू फैल रही है। कभी हिम्मत में, कभी समंदर में, कभी धरती के सीने में आग बनकर, कभी राख बनकर तू बार बार बिखर रही है, तू बार बार बिखर रही है।
तू बार बार बिखर रही है। माँ देखो तो, माँ देखो तो, धुएं को चीरता हुआ, धुएं को चीरता हुआ इंसान भी दौड़ रहा है, धुएं को चीरता हुआ इंसान भी दौड़ रहा है, कभी बैल बनकर, कभी घोड़ा बनकर, कभी गधा बनकर। अफरा तफरी है इंसान के चारों ओर, अफरा तफरी है इंसान के चारों ओर। भौतिकता के पत्थरों के नीचे दब गया मानव मन का शोर, ईंट और पत्थरों से भर गए जंगल और रोशनदान बन गए पक्षियों के ठोर, रोशनदान बन गए पक्षियों के ठोर। बस अब बंद भी करो, बस अब बंद भी करो, बहुत हो चुकी है तबाही, बहुत उजड़ चुके शहर, बहुत रो लिए हम, कुछ न करें, बस इतना करें, बस इतना करें। वृक्ष लगाए हम, हरियाली बढ़ाए हम, खनन हनन और प्लास्टिक से, खनन हनन और प्लास्टिक से प्रकृति को छुटकारा दिलाए हम, खनन हनन और प्लास्टिक से प्रकृति को छुटकारा दिलाए हम। सहेज ले प्रकृति को हम समझकर अपनी माँ, सहेज ले प्रकृति को हम समझकर अपनी माँ, समझकर अपनी माँ, समझकर। आपने अपना वो दुख, अपनी तकलीफ सिर्फ कविता से ही नहीं, अपने हाव भाव और अपनी आवाज़ और जो उसका वेग था उससे आपने पूरी तरह से जाहिर कर दिया है। और इस तरह से अगर हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एहसास जाग जाता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी कविता पढ़ी आपने। अब मैं बुलाऊंगी हमारी दिव्या विधानी जी को। हिंदी, सिंधी और गुजराती भाषा में सुंदर काव्य लेखन इनकी पहचान है। अहमदाबाद की निवासी सुश्री दिव्या विधानी जी का स्वागत करती हूँ। यह 10 वर्षों से सक्रिय रूप से लिख रही हैं, आकाशवाणी में अनाउंसर हैं, इन्हें पद्य में लिखना पसंद है। अब तक इनका एक साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। आइए दिव्या जी, सुनाइए अपनी रचना। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम 2 दिन का आयोजित किया है, और इसके साथ ही मैं श्रद्धा जी और कविता जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। माँ शारदे को वंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है विरासत। बचपन की सुनहरी यादों में एक याद, मेरी आवाज आ रही है? बचपन की सुनहरी यादों में एक याद ये भी है कि जब माँ ने चिड़िया दिखाते हुए कहा था, ये है हमारे घर की नई सदस्य। बचपन की सुनहरी यादों में एक याद ये भी है कि जब चिड़िया दिखाते हुए माँ ने कहा था, ये है हमारे घर की नई सदस्य। मेरे सवालिया नजरों के जवाब में माँ ने दादी की तस्वीर की ओर इशारा किया। मेरे सवालिया नजरों के जवाब में माँ ने दादी की तस्वीर की ओर इशारा किया, जहां तस्वीर के पीछे चिड़िया का घोंसला देख खुशी से झूम उठा था मेरा बाल मन। फिर तो मेरा ज्यादातर समय चिड़िया को निहारने में बीतता। उसकी चहचहाट के सुरों में अपना सुर मिलाना, उसका दाना चुगने के लिए यहाँ वहाँ फुदकना, उसका दर्पण में अपनी ही छवि से उलझना, ये सब आपने देखा होगा। उसका दर्पण में अपनी ही छवि से उलझना, ये सारी यादें आज भी मेरे दिलो दिमाग में ताजा हैं। चाहकर भी मैं ऐसी यादें अपने बच्चों को नहीं दे सकती। चाहकर भी मैं ये सारी यादें अपने बच्चों को नहीं दे सकती कि आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ में हम बहुत आगे निकल आए हैं और नन्ही चिड़िया कहीं पीछे छूट गई है। अब बच्चों को दिखाने के लिए मेरे पास है बस
एक आर्टिफिशियल घोंसला और उसमें बैठी आर्टिफिशियल चिड़िया। मैं शर्मिंदा हूँ उस नन्ही चिड़िया से, मैं शर्मिंदा हूँ माँ प्रकृति से और उन तमाम बच्चों से कि जिन्होंने चिड़िया को नहीं देखा। और सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ मैं अपनी माँ से कि उन्होंने मुझे जो सौंपी थी वो विरासत मैं नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकी, कि उस अंधी दौड़ में जाने अनजाने मैं भी शामिल रही। मैं खुद उनसे आज परिचित हुई हूँ, एडवोकेट हैं प्रिया, आप आइएगा। और कहूँगी कि हमारे पास एवरेज 3 मिनट्स हैं हर एक के लिए, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बाद वाले लोग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ टाइम है ना 7 बजे तक का। तो कोशिश कीजिए कि सबका हो जाए, इस तरह से हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट प्रिया सोगानी हूँ। जैसा कि मैम ने बताया, मेरी कविता का कोई शीर्षक नहीं है, बस ये कुछ ख्याल हैं। जब हम अपने घर वालों से या अपने किसी परम मित्र से, मेरी जिस उम्र के पड़ाव पे मैं हूँ, तब हम उनसे पैसा मांगते हैं तो हमारा उनसे रिश्ता कैसा हो जाता है और हमें कैसा लगता है। ये मांगी हुई जिंदगी जी नहीं जाती अब, खाने से ना पेट भरता है, कपड़ों से ना तन ढकता है, घर में ना सुकून मिलता है, तुमसे मांगे हुए पैसों से जो मिला है। ना खुददारी आती है, ना मेहनत की जाती है, आते हैं तो बस खुद पे आंसू और तुम पे गुस्सा। ये पैसा जो मेरे खाते में तुमने डाला, जो मैंने तुम्हें लिख के मांगा, पूछने की हिम्मत नहीं थी। दर्द बन के बैठा है मन में, दिखने में जिंदगी रंगीन है, लेकिन इन पैसों ने हाथ शिथिल कर दिए मेरे। उठाया नहीं जा रहा कोई भार, इतनी कमजोरी महसूस हो रही है बदन में। ये कैसा इश्क है जिसमें एतबार नहीं मुझे तुम पर, और ये कैसा इश्क है जिसमें भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पर। ये कैसा अपनापन है माँ बाप से, खुद में दर्द समेटा नहीं जाता इसलिए बातें नहीं करते, और उनसे बिना रिश्ता निभाए मांगा नहीं जाता इसलिए झूठी हंसी खेल की बातें करते नहीं थकते। ये कैसा अधूरा जीवन है, पूरा नहीं होता खुद से, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों में भी मर जाता है इंसान का भोलापन। फिर वो करने लगता है इधर उधर मुंह मारी, खुद को ढूंढने में दूसरों से बस होती रहती है उसे जनन। यहाँ भी कोई बैठा होगा जिसके मन में मेरे लिए कोई बुरा ख्याल आया ही होगा। उसने पा तो लिया होगा खुद की कमाई, छत और परिवार, पर वो भी तो खुश नहीं, तो पाके भी खोने का ये कैसा है रूह का व्यापार। बस मैं यही कहना चाहती थी। ये जो मैंने कहा ये आपके लिए नहीं था, दरअसल मेरा खुद का एक पोइट्री क्लब है जिजीविषा, काव्य से जीवन की दिशा, जहाँ हम एक बैठक करते हैं, महफिल करते हैं। मैंने मैम को भी बताया। तो बस कभी कभी जब लोगों की सुनते हैं तो ये मैंने महसूस किया है कि किसी के मन में कोई, मेरी उम्र में हम कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, तो खुशी भी महसूस करते हैं और जलन भी महसूस करते हैं, और पैसे भी मांगते हैं और शर्म भी आती है। ये बस उसी पे एक कड़वा सच था। धन्यवाद। मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ, हमारी बहुत प्रतिभा है मीना खेरिया जी। वह उनकी प्रतिभा की धनी हैं, जिनका एक रूप तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या बोलेंगी अभी, और एक इतना खूबसूरत रूप है जो मेरे भुलाए नहीं भूलता है। इनके घर में जो मैंने पेंटिंग देखी और उसका मुकाबला मेरे मन ने किया था, जो लुवरे में पेंटिंग्स बनी हैं बिल्कुल उनके मुकाबले की मुझे लगी थी, और मैं इनके पीछे भी पड़ गई थी कि आप इस पर कुछ काम कीजिए। तो ये इनका बहुत खूबसूरत मैंने रूप देखा इनके घर में। और उसके अलावा ये इन्होंने MBA किया है, अपने पति के साथ ये व्यवसायी रह चुकी हैं। जन्मभूमि इनकी कानपुर है और कर्मभूमि अहमदाबाद है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लगभग 30 वर्षों से लिख रही हैं, और पिछले 5 सालों में ये इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं कि जब भी फेसबुक खोलते हैं तो इनकी पोस्ट कहीं ना कहीं दिख भी जाती है। हम बिजी हो जाते हैं लेकिन वो पोस्ट आगे बढ़ जाती है। तो इनके लेखन
में खास तौर पर हिंदी कविताएं लिखने की शौकीन हैं और 2 एकल काव्य संग्रह डायरेक्ट दिल से सफ़र एहसासों का प्रकाशित हुए हैं और इन्हें सफ़र एहसासों में साहित्य जगत में सुविख्यात कवि आदरणीय श्री हरिओम पवार जी, शंभू शिखर जी, प्रियांशु गजेंद्र जी व भुवन मोहिनी जी साहित्य जगत के दिग्गजों के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ इनका वो प्रोग्राम आपका उसकी बात की है। और इनकी गज़लों में बहुत महारत है, बहुत खूबसूरत गज़लें लिखती हैं ये और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कई पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और साझा काव्य संग्रह के प्रकाशित हुए हैं।